write an effective abstract? And the question I will try to answer includes what is the importance of writing a strong abstract, differentiations and how we can differentiate between structured and unstructured abstract, what are the steps that are involved in writing a good and strong abstract, and what are the things finally we need to consider while you are writing, and we have to avoid those things while you're writing a strong abstract. So before I start, I think so हमें सबसे पहले ये समझना है कि abstract क्या है actually. So abstract is a short form of a research paper. Either it's a published or it's unpublished. So it's a short summary of any research paper or a manuscript. Now, we have to understand what is the importance of a good abstract before we write. हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी क्या importance है. So perhaps most important section जो है manuscript का वो जो है वो abstract होता है, and it has several reasons. Firstly, the first reason, abstract is the first section read by journal editors while deciding whether to send your article for review or not. So journal editors basically decide करते हैं based on review of your abstract कि आपके abstract quality ऐसी है कि उसको हम review के लिए भेज सकते हैं क्या नहीं. Secondly, once your manuscript or article is published, again this is the first section that is examined by the readers. So readers भी इसी पे based on your abstract decide करते हैं कि whether they have to go to read the full text or not. So in many cases, it's the only section that is read will ever read, because most literature bases are only index the abstracts, and full text access is quite restricted. So this is how abstract communicate your research succinctly while highlighting important points of your research. So we have to understand the importance of writing abstract when we are writing abstract. So now we have to differentiate what is the difference between structured and unstructured abstract. So starting with structured abstract actually preferred by medically relevant publications, and usually structured abstracts follow IMRAD pattern, which is introduction, methods, results, and discussion pattern. So it has several advantages, including it's an easy for the authors to write. Again, it's easy for the reader to understand what you are actually trying to communicate, and good for computerized indexing as well. Whereas unstructured abstract is, it's the second name of unstructured abstract is traditional abstracts, and it's written as a continuous paragraph, though contains the similar information as structured in abstract. So now we are moving towards the tips, or what are the strategies we keep in mind while we are writing an abstract. So the very first thing is, first I think so we should have to write or complete our manuscript before we start writing our abstract. So since it's the first part of your manuscript, most of the time people can do a mistake by writing your abstract first, and then they can start writing their manuscript. So never do like that. So write your paper first, because manuscript can serve as a guide to write your abstracts. Once you have written your abstract, just go through the paper and highlight the most important sentences in each component of your manuscript, including introduction, results, and methods, and then conclusion. So then you can use these sentences as outline to write your abstract. And then finally, at this point, it is again important to understand, to know about the journal style of writing. And again, you have to give an importance to look for the guidelines of that is provided by the journal for reviewers. It is very, very important to review the guidelines. So don't remember to forget to review the guidelines before you start writing your abstracts. Now, अब हम components की बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम components जो है वो लिखेंगे. So the very first component is the title of your study or abstract. So good title indicates clearly the subject and scope of the study. So ideal title should be around 10 to 12 words, but there may be exceptions, and it also vary according to the journals. So avoid using abbreviations, I would say.
So even if the abbreviations are the standard ones, we should have to avoid using abbreviations in the title. Then introductory background. So this is the first section of the abstract, and it's quite valuable. You can write 1 to 3 sentences which give the idea to the reader about what you have understand, this research and what this research is about. You can also use the introductory phrases like we aimed to. So this tells the reader that you are explaining about purpose of your study. So these are the phrases that can be used in introductory part. This could be called as aim of the study as well. After that, you have to write your methodology or methods. So this gives the chance to summarize your methodology. Here, I would say avoid giving excessive information that is not necessary in method section of the abstract. But say, for example, if it's a clinical trial, you should mention about the sample size, the patient groups and the study groups as well. Then after writing the methods, you have to write about the findings and research. Since, as I mentioned, like abstract is the first part and most important part of the manuscript. Same goes with findings or results section of the abstract is the most important part of the abstract. Why? Because it gives clear understanding and it clearly describes the most important findings. As the abstract is most important part of your paper, the results subsection is most important part of your abstract. So people are reading your abstract to know about your findings. So this could be longest part, I would say. Once you have written your results, now you need to write the conclusion. So state your conclusion concisely and avoid overstatements. So you can write your conclusion in 1 to 2 sentences of your abstract, and it would be the message of your study actually. You may use words like our study revealed that, or we concluded that. So these are the sentences that can be, words that can be used in the conclusion section. Then state your main findings as concisely as possibly. Here it is again important for international relevance, and nationally again it's important to give the practical implication of your work and how your work has advanced the field, because this will again help the reader to have a more clear understanding of the importance of your findings. And finally, note not to overstate your conclusion in abstract, so not to mislead the readers. And lastly, the keywords. Keywords is having much more importance because citation is based on your keywords. So literature search is important part in research, and the purpose of keywords in research paper is to help other researchers to find your paper when they are actually conducting the search on the same topic. So keywords define topic, subfield of study, and research issues, etc. So keywords, make your papers searchable and ensure you get more citations. You can use 3 to 5 keywords, and again, you can go for up to 7 keywords as well. So these were the tips or techniques that we can use to write a good or strong abstract. And now, what are the things we should have to avoid while we are writing our abstracts? Because of strict word count limits, it's very difficult to combine all aspects of manuscripts in a paragraph of 150 to 300 words. Though it's a quite, thought-provoking or a challenging task. However, if you know what to avoid, it can make your job easier. So what should we avoid? We should not give lengthy background in abstract. We need to avoid giving citations in background. Details of the methods should be avoided. Details about the statistical methods and software until if it is the focus of your study. And you need to, avoid to give the abbreviation as I mentioned, and you should not give the acronym as well. Though few of the journal will provide you the list of the abbreviations, but I'll suggest not to use the abbreviations in titles and abstracts. So interpretation of results are not discussed in the text. If you are not given the results in your main manuscript, you should not use those interpretation in your abstract.
So once you have written your abstract, I will say you should have consult with one of your senior colleague or who is expert in writing, so that you may have an idea अगर उसमें कोई further improvement की ज़रूरत है. So revision और अगर कोई revision चाहिए, so that's important to have a review by a colleague. Now, what is the take-home message? So abstract is very important part of your paper. You have to follow the tips to write a strong abstract. Provide clear conclusions, but avoid overselling your work. Right. So this is the take-home message from my side. So this was all about how we can write abstract. Thank you very much. Thank you very much, Shahzad. मेरा ख्याल है बहुत सारी important information जो इस discussion में cover हो गई है. मैं अभी next speaker तक जाने से पहले मैं डॉक्टर परवीन को कहूँगा कि अगर वो कुछ इसमें add करना चाहें abstract वाले section में before we move to the executive summaries, तो डॉक्टर परवीन को अगर यहाँ पे point share करना चाहती हैं शहजाद के discussion से लेके. Thank you so much. I think काफी सारे important point abstract के जैसे relevant शहजाद ने discuss किए हैं, which includes I think voice थोड़ी सी muffled थी तो पता नहीं लोगों तक कितना उस हिसाब से पहुंचा, but I think all important points with regards to कि आप खास तौर पे references use ना करें. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि आपने references use किए हुए होते हैं in the sense के abstract के अंदर, which is नहीं करना चाहिए. इसके अलावा एब्रीविएशंस यूज ना करें, सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करें, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट आपकी जो विंडो है पूरी रिपोर्ट को देखने के लिए, एंड वो आपको बताता है कि कोई भी आर्टिकल आपके काम का है या नहीं है. तो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि उसको देखा जाए, और स्पेशली व्हेन यू आर सबमिटिंग किसी भी जर्नल में आप सबमिट कर रहे हैं तो प्लीज 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 डू मेक श्योर कि आप जो गाइडलाइंस है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें. यूजुअली लोग एब्स्ट्रैक्ट को देखने की गाइडलाइंस और उसको छोड़ देते हैं एंड तक काफी, और फिर उनके पास टाइम नहीं बचता, और फिर रशिंग में जब हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो इसका वो इम्पैक्ट नहीं आता जो आना चाहिए. या जर्नल ने आपको मांगा होता है कि आप स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट लिखें और लोगों ने अनस्ट्रक्चर्ड डाल दिया होता है, या कहा जाता है कि अनस्ट्रक्चर्ड होना चाहिए 100 to 250 वर्ड्स का और लोगों ने उसको स्ट्रक्चर्ड डाल दिया. तो सो प्लीज डू मेक श्योर दैट आप उसकी गाइडलाइंस पढ़ लें, regardless if it's a structured abstract or unstructured, the information that we need to provide is usually the same. So अगर आपको unstructured abstract लिखने में मुश्किल होती है तो headings लेके लिख लें उसको अच्छे से, और बाद में आप उसकी headings जो को हटा दें तो actually आपके पास पूरा एक unstructured abstract जो है वो ready हो जाएगा. I think that's it. If you have got any questions, please keep on typing on the chat box. तो फिर जैसे खत्म होता है तो फिर हम questions वहां से ले सकते हैं about these two aspects, or if there is any other questions as well. Thank you, Ehtisham. Thank you, Dr. Praveen. Now, Salma's going to talk about the executive summaries, so I'll just hand it over to Salma. Thank you, Ehtisham. Today, my name is Salma Rahman. I'm a PhD student. Today, I'm going to discuss what is executive summary, why is important, when do we have to write summary, how long it should be, and who are the audience, and important point while writing executive summary. So first, number one is what is executive summary? So executive summary is a thorough overview of research reports that synthesize key point for the reader. And why is important? It helps reader to understand the study overall content in less period of time. It is last section of the last section of the document, but last section of the document to be written, and first section of the document could be present. ये पढ़ने वालों को बहुत कम वक्त में आपकी रिसर्च के स्टडी के बारे में मालूमात देने में जो ये डॉक्यूमेंट है वो मदद फराहम करता है. और इसके अलावा ये समरी सबसे आखिर में लिखी जाती है, लेकिन ये प्रेजेंट सबसे पहली होती है, इसलिए एग्जेक्टिव समरी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है. Number three, why do we have to write summary? We are writing executive summary in different research report or annual report में, or I think it is also applicable for all professionals. How long it should be? It should be 10% of your whole document, and it should stand alone.
इसका ये मतलब है कि स्टैंड अलोन का मतलब ये है कि इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जो रीडर है उसको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि ये समरी इटसेल्फ एक डॉक्यूमेंट है। तो इसको जो है हमें बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ऑर्गेनाइज करने के बाद इसको हमें लिखने की जरूरत है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई हु आर द ऑडियंस। जब भी हमें कोई भी एग्जेक्टिव समरी जब हम लिखते हैं तो हमें ये सबसे पहले जो है अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हम क्यों लिख रहे हैं। आर यू राइटिंग फॉर पब्लिक, आर यू राइटिंग फॉर प्रोफेशनल, और आर यू राइटिंग फॉर एनी स्पेसिफिक पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन हु इज इंटरेस्टेड इन योर रिपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज सो जब आप लिखते हैं, जब आप लिखना शुरू करते हैं तो उस वक्त कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको कवर करने की जरूरत है। तो अगेन कीप इन योर माइंड हु आप जब समरी लिख रहे हैं तो किसको लिख रहे हैं, who is you writing for, and it is the first thing, or it is the first thing your reader is going to be see, and maybe this is the only document your reader will look through and before making a decision about your action and inaction. So that's why it is also important. So your executive summary should be accurate होनी चाहिए, उसको accurate, complete, concise and readable होना चाहिए आपकी एग्जेक्टिव समरी को जो आप लिख रहे हैं। और आप जो उसमें हेडिंग यूज करते हैं, यू शुड इंक्लूड लाइक कॉन्टेक्स्ट, एम, मेथड, फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन। इसके अलावा जो है सम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट एग्जेक्टिव समरी, प्रोवाइड अ कंप्लीट एंड कंसाइज ओवरव्यू ऑफ रिपोर्ट। इसका मतलब ये है कि अपनी रिपोर्ट को अच्छे तरीके से और मुख्तसर बयान करने की कोशिश करें। नंबर 2, do not try to include every point in the summary but ensure major idea और जो आपके important point है वो जो है उस summary के अंदर जो है cover होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट इंक्लूड पर्सनल ओपिनियन। तो आप अगर कोई भी समरी, एग्जेक्टिव समरी लिख रहे हैं तो उसमें अपने व्यू देने की आपको जरूरत नहीं है। आप वो लिखें कि जो आपकी फाइंडिंग्स हैं, तो अवॉइड करना है आपने अपने पर्सनल व्यू को, कि आपका व्यू ये है, अगर आप एग्री हो डिसएग्री हो तो इस किस्म की आपको ओपिनियन लिखने की जरूरत नहीं है। बी कंसिस्टेंट, it's mean use same language, same approach, same terminology, और तो आपको जो भी लिखना है तो उसका जो लेआउट है और इसको सेम, अगर आपने शुरू में कोई टर्मिनोलॉजी यूज की है तो कोशिश करें कि उसको शुरू से आखिर तक आप जो है उसको सेम वे में और सेम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ये नहीं हो कि आपने शुरू में कुछ और किया है, बीच में कुछ और टर्मिनोलॉजी लिखी है जो कि रीडर को प्रॉबली अंडरस्टैंड करने में सम टाइम जो है कि डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा जो है डू नॉट रीड एनी क्वेश्चन फॉर रीडर। अगर कोई, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट ना लिखें कि जिसको रीडर पढ़ के कंफ्यूज हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कोड यूज कर रहे हैं और या कोई स्टेटमेंट इस किस्म की लिख रहे हैं कि जो कि आपको उसका मतलब आपने अगर उस स्पेसिफिक भी किसी चीज के लिए अगर आपने इस्तेमाल की है लेकिन आपके रीडर को नहीं पता है, तो इसलिए अवॉइड जो है कोड और इस किस्म की जो है मुश्किल जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। refrain from using jargon. So again is a different difficult terminology, difficult word जो कुछ लोग जो है ना बहुत, वो जब समरी लिख रहे होते हैं उनका ये मतलब होता है कि अगर हम बड़े बड़े मतलब मुश्किल वोकैबुलरी यूज करेंगे तो प्रॉबली हम जो है, जो रीडर है उसको जो है ना गुड प्रॉबली रीडर जो है पढ़ के वो बोलेगा कि वाह भाई इसका नॉलेज अच्छा है, जो कि मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। इसलिए जब आप कोई भी रिपोर्ट लिखें या कोई भी स्टेटमेंट लिखें तो आपको प्लेन एंड सिंपल लैंग्वेज यूज करने की जरूरत है। और डू नॉट अज्यूम योर रीडर नो एवरीथिंग अबाउट योर रिपोर्ट। सो इसका यही मतलब है कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं आप उसको सिंपल लैंग्वेज में, प्लेन लैंग्वेज में और आसान तरीके से लिखें कि आपका जो रीडर है वो जो पढ़ते ही समझ जाए कि आपने क्या लिखा है, और उसको बहुत मुश्किल
कोड बहुत मुश्किल, मतलब वोकैबुलरी इस्तेमाल करके इसको और मुश्किल ना बनाएं कि आप समझे कि आपके रीडर को पता है कि, लेकिन इस रीडर को बाज़ का जो है नहीं पता होता है, क्योंकि यू आर इन चार्ज ऑफ योर project and you are in charge, or you know how you did your research study and everything. So main point ये है कि जब भी आप कोई अपनी रिपोर्ट लिखें या कोई भी अपनी फॉर एग्जांपल थीसिस लिखें, तो कोशिश करें कि हमेशा सिंपल, आसान, ग्रामर, इंग्लिश और इसके अलावा जो है ना मुश्किल किस्म की जो है टर्मिनोलॉजी ऑलवेज अवॉइड करें इस्तेमाल करने से। इसके अलावा जो रिमेंबर पॉइंट ये है कि समरी शुड बी ग्रैब द रीडर अटेंशन। जब भी आप कुछ समरी लिखेंगे तो उसको इस तरह ऑर्गेनाइज करें कि जो पढ़ने वाला है वो देखते ही कहे कि हाँ जी ये जो है ना बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है और आई वांट, और वो उसके ऊपर कोई अच्छा एक्शन ले। फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर अ ग्रांट, वो पढ़ते साथ ही बोले कि भाई इसकी स्टडी बहुत अच्छी है, उसको पढ़ते ही उस डॉक्यूमेंट में से हर किस्म की इंफॉर्मेशन जो वो चाहता है वो मिल जाए। तो इसलिए एग्जेक्टिव समरी जो है बहुत जरूरी है। किसी बड़े डॉक्यूमेंट को लिखना तो बहुत आसान है, लेकिन उसी डॉक्यूमेंट की इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है उसको एक छोटे से डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जब भी आप अपनी एग्जेक्टिव समरी लिखें तो उसको जो है ना बहुत सोचने के बाद, समझने के बाद, आउटलाइन तैयार करने के बाद फिर आपको लिखने की जरूरत है। इसके अलावा एक चीज मैं मेंशन ये करना चाहती हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट और एग्जेक्टिव समरी एक है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट और एग्जेक्टिव समरी में ये फर्क है कि जो रीडर है वो एब्स्ट्रैक्ट समरी जब पढ़ता है, एब्स्ट्रैक्ट जब पढ़ता है तो उसको स्कैन करता है, ठीक है। तो उसकी जो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके आर्टिकल और आपके आर्टिकल और जो भी आपका जो जिस किस्म का डॉक्यूमेंट है उसमें से लेने की कोशिश करता है। जबकि एग्जेक्टिव समरी जो एक स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट है जो रीडर पढ़ने के बाद उसी के ऊपर बाजू का डिसीजन लेता है कि आपका, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका पूरी रिपोर्ट जाके फॉर एग्जांपल 80,000 वर्ड हैं या 90,000 वर्ड हैं वो जाके पढ़े और वो बोले कि हाँ जी मैं ये पढ़ने के बाद फिर मैं ये पढ़ता हूँ, उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक डिसीजन। सो इट्स यही वजह है जिसकी वजह से एग्जेक्टिव समरी बहुत इसकी इम्पोर्टेंट है कि आप जो अगर आप किसी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आप फॉर एग्जांपल स्मॉल फंडिंग है तो इसलिए आपको एग्जेक्टिव समरी जो है उसको अच्छे तरीके से और वेल ऑर्गेनाइज करके लिखने की जरूरत होती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इन जो है कि एग्जेक्टिव समरी में ये भी डिफरेंस है कि आप एग्जेक्टिव समरी में स्मॉल जो है पिक्चर्स एंड ग्राफ जो है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट समरी में नहीं कर सकते हैं। सो थैंक यू। और अगर डॉक्टर परवीन इस पे कुछ कमेंट करना चाहें तो वी आर हैप्पी, बिकॉज आई डिड बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एज ए PhD स्टूडेंट। थैंक यू। थैंक यू सलमा। डॉक्टर परवीन। Thank you very much, and I think that was great, and I hope it was all useful. Yeah. Any comments from anyone? Any questions? एहतेशाम आपको कुछ बोलना है? बाकी लोगों से जैसे जैसे क्वेश्चंस हैं या if someone wants to contribute, I think हमारे पास टाइम है काफी, तो if people wanted to talk, we can also allow them to अपना माइक्रोफोन यूज करके भी बात कर सकते हैं। लेकिन प्लीज मेक श्योर करें कि जब आपने बात कर ली है तो आप फिर उसके बाद अपना माइक्रोफोन बंद कर दें। बिल्कुल। सवालात लेने से पहले मैं एक चीज सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट में ऐड करना चाहूंगा कि अक्सर आप एब्स्ट्रैक्ट्स पढ़ते हैं जर्नल में जो सबमिट होते हैं जिसमें लोगों ने लिखा होता है कि द implications are shared और the conclusion has been discussed और recommendations have been proposed। वो चीजें एब्स्ट्रैक्ट में जाने की जरूरत नहीं, आपको एक्चुअली बताना है कि क्या रेकमेंड आप कर रहे हो। सिर्फ ये पैराग्राफ में लिख देना कि जी we have proposed implications for a research or we proposed recommendation, that's not enough. You actually have to spell that out. What is the message that you want your reader to know? और इसके अलावा आजकल जो एक और चीज आप बहुत जगह पे देखेंगे कि आपको बास जर्नल्स आपको बोलते हैं वीडियो एब्स्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए, या फिर आपको कहा जाता है पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट, मेरे ख्याल में इसको ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। वो भी एक काफी ज्यादा उसका ट्रेंड है जो बढ़ रहा है।
और उसमें उसका भी पर्पस यही होता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन आपके पास एब्स्ट्रैक्ट में जो आपने इन्फॉर्मेशन किसी को देनी है, आप वही वाली एब्स्ट्रैक्ट वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, लेकिन उसका फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो अगर आपके पास ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट है तो वो वही इसी तरह का कंसाइज डॉक्यूमेंट है, बट इट्स मोर ऑफ अ विजुअल समरी ऑफ द मेन फाइंडिंग्स ऑफ द आर्टिकल, के जो आपकी फाइंडिंग्स निकल रही हैं उसको आप किसी पिक्चर्स के जरिए से, या आपने देखा होगा कि बने होते परसेंटेज लोगों के हिसाब से शो की जाती है कि अगर 100 लोग हैं तो 100 पिक्चर्स बनाई होंगी और उसमें जितनी भी परसेंटेज है उसको थोड़ा सा वो हाईलाइट करके या किसी और तरीके से कर देंगे। यूजुअली दीज आर वेरी गुड फॉर ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन उसमें उसी तरह की रहती है कि आप मेक श्योर करें कि आपकी कीवर्ड सेम हो, आपकी बाकी सारी जो है वो चीजें ठीक हो, इमेजेस जो आप यूज करें उसकी क्वालिटी अच्छी हो, और वो क्लियरली रिप्रेजेंट करे जो कुछ आप एब्स्ट्रैक्ट में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। और वीडियो जो एब्स्ट्रैक्ट है उसकी भी वही वाली बात है कि आप वीडियो की शक्ल में एक्सप्लेन करते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपना एब्स्ट्रैक्ट, स्पेशली उन लोगों के लिए who may find it difficult to read, या उसको बहुत ज्यादा और अपीलिंग करने के लिए किया जा सकता है। जी Thank you. Okay, now is the time for questions. So अगर आपके पास कोई भी सवाल है, अगर आप किसी स्पेसिफिक स्पीकर से कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर कोई पॉइंट आप शेयर करना चाहते हो तो प्लीज रेज योर हैंड एंड we'll unmute you and then you could share your perspective too. एहतशाम, एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, उसको देख लें आप पहले। So Sarfaraz is asking what is the difference between cover letter and executive summary, and it will be beneficial for audience to know what is the purpose for writing executive summary. सलमा, आप बताएंगे पर्पस क्या होता है एग्जीक्यूटिव समरी को लिखने का? You're mute. Salma, you're mute. Unmute. एग्जेक्टिव समरी लिखने का मकसद ही यही होता है कि जैसे मैंने ऑलरेडी मैं बयान कर चुकी हूँ कि एग्जेक्टिव समरी जो लिखते हैं वो स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट्स है, कि जो आपकी बहुत बड़ी रिपोर्ट है, अगर आप किसी ग्रांट मतलब कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए जो रीडर है वो देख के उसके ऊपर आप एक्शन लेगा, तो उसमें यह पर्पस यही है कि जब आप होल जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसकी मेन पॉइंट और मेन इंफॉर्मेशन जो है वो आपने एग्जेक्टिव समरी के अंदर लिखनी है, कि रीडर पढ़ते ही आपकी एग्जेक्टिव समरी को देख के ही आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो आपकी रिपोर्ट है और आपकी जो आप करना चाह रहे हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ते ही उसको हर किस्म की इंफॉर्मेशन आपकी एग्जेक्टिव समरी से मिल जाए, तो उसको उस रिपोर्ट के अंदर जाने की जरूरत ना पड़े और उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो आई थिंक दिस इज अ पर्पस ऑफ एग्जेक्टिव समरी। इसमें थोड़ा सा ऐड कर दो, एग्जीक्यूटिव समरी देखिए दो तरह की चीजें आप लिखते हैं। जब आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं किसी जर्नल में पब्लिश करने के लिए, तो आपके ऑडियंस डिफरेंट होते हैं, उनके पास वो आर्टिकल लेके पढ़ने की कोशिश करते हैं। यूजुअली एक आर्टिकल होता है तकरीबन उसकी लेंथ होती है 3000 से लेके मैक्सिमम 7000 8000 वर्ड्स इंक्लूडिंग रेफरेंसेस एंड एवरीथिंग, इतना ही होता है, ठीक है। अगर क्वांटिटेटिव स्टडी है तो 3000 वर्ड से शुरू होगी 5000 वर्ड तक, अगर क्वालिटेटिव स्टडी है तो 5000 से लेके 8000 तक होगी, डिपेंडिंग ऑन किस जगह पे आपने जमा करवाया है। तो आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो यूजुअली आप देखेंगे एनीथिंग बिटवीन 200 to 350 वर्ड्स मैक्सिमम कहा जाता है, विच इज, तो आर्टिकल भी छोटा है आपके पास और आपका जो आपने जो एब्स्ट्रैक्ट दिया है वो भी छोटा है, तो लोगों के पास टाइम होता है कि उसको अच्छे तरीके से पढ़ के लिख सकें। एग्जीक्यूटिव समरी जब आप रिसर्च रिपोर्ट्स लिख रहे होते हो तो आपकी एक रिपोर्ट कम से कम 100 150 200 पेजेस की बाजुकात होती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने उसमें क्या लिखा है। ऐसा ही है कि जैसे आप पीएचडी थीसिस लिखते हैं या आप अपना मास्टर्स का पूरा डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं, उसी तरह से होता है। यूजुअली देयर इज मोर देन वन कंपोनेंट ऑफ रिसर्च के जहां पे आपने सिर्फ सर्वे यूज नहीं किया होता, देयर इज सर्वे, देयर इज सम क्वालिटेटिव एलिमेंट, देयर इज सम लिटरेचर रिव्यू, और जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारी मुख्तलिफ जगह से आ रही होती है। आपके ऑडियंस मुख्तलिफ होते हैं कि जिनको आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो
और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका रिसर्च से कोई वास्ता नहीं होता, तो उनको टेक्निकल उसकी नहीं होती, और बिजी लोग होते हैं कि जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी अब इतने पूरे बड़े डॉक्यूमेंट को देखें। अगर इसमें मैं एग्जांपल एक दूं तो आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने कॉकरेन रिव्यूज देखे होंगे, या रिव्यूज कुछ जगहों से किए जाते हैं। कॉकरेन से हैं, JBI एक इदारा है, उसके रिव्यूज होते हैं जो कि 200 250 वर्ड्स के पेजेस के लंबे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो उसको आसान करने के लिए और एक्सेसिबल बनाने के लिए कि हर किसी को वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए जो रिपोर्ट के अंदर आपने लिखी हुई है, तो रिपोर्ट में आपने डिस्क्रिप्शन बड़ी दी हुई होती है पर्पसेस की, और हर चीज को एक्सप्लेन किया होता है, और इसमें आपके जो सीधा पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सब के सब उसको एक डॉक्यूमेंट में मिल जाए। फिर उसके बाद इफ दे वांट टू रीड द रिपोर्ट दैट्स फाइन, अगर नहीं रिपोर्ट रीड करना चाहते तो उनको वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो वहां पे आपने उन्हें प्रोवाइड कर दी है एक डॉक्यूमेंट में। Does that answer your question, Sarfaraz? Ehtisham, do you want to take this question about cover letter में और abstract में फर्क क्या है, और executive summary में फर्क क्या है? देखिए, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, कवर लेटर का जो पर्पस होता है ना, वो सिर्फ ये होता है कि आप जनरल आइडिया दे रहे हो। तो लेट्स से अगर आप जर्नल को सबमिट कर रहे हो अपना मैन्युस्क्रिप्ट, तो आप एक कवर लेटर सबमिट करते हो और आप एब्स्ट्रैक्ट जो है वो साथ में सबमिट। कवर लेटर में आपने मेरे हिसाब से 4 चीजें मेंशन करनी होती हैं। एक तो आपने ऑथरशिप के क्राइटेरिया, क्योंकि जर्नल की क्लियर गाइडलाइंस होती हैं कि कवर लेटर में आपने क्लियरली बताना होता है कि आप को कोई एथिकल कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है अपने ऑथर के साथ, या अगर ऑथर्स ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया कि नहीं किया। दूसरा ये कि आप 1 या 2 सेंटेंसेस में मैन्युस्क्रिप्ट का जो है वो कनेक्शन बता देते हो जर्नल के एम्स और स्कोप के साथ, ताकि एडिटर को ये अंदाजा हो कि आपने वाकई ऑथर गाइडलाइंस पढ़ी और आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो जर्नल के क्राइटेरियाज के साथ मैच कर रहा है, ताकि वो फिर डेस्क रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट होता है, अगर आप मल्टीपल पेपर्स पब्लिश कर रहे हो एक ही पेपर, एक स्टडी में से, तो ये चीज कवर लेटर में मेंशन करना बहुत जरूरी होता है कि आपका ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये ऑलरेडी 2-3 मैन्युस्क्रिप्ट से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, और वो क्लियर कट आपने बताना होता है कि ये किन किन मैन्युस्क्रिप्ट से, ताकि कल को आप किसी भी अनएथिकल जो इश्यूज है ना, जैसे कि सलामी स्लाइसिंग के, डुप्लीकेट पब्लिकेशन के, उस तरह के इश्यूज में आप ना आए। तो कवर लेटर का मेरे लिए पर्पज यही होता है कि आप कंसाइज वर्ड्स में 2-4 बातें बता देते हो मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। जब आप बात करते हो एब्स्ट्रैक्ट की, तो एब्स्ट्रैक्ट में जरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, वो जैसे शहजाद ने डिस्कस किया कि वो ओवरऑल समरी होता है आपके मैन्युस्क्रिप्ट की। एक चीज मैं एब्स्ट्रैक्ट में ऐड करना चाहूंगा कि जैसे डॉक्टर परवीन ने कॉकरेन की बात की, JBI की बात की। कनाडा में आजकल क्योंकि नॉलेज ट्रांसलेशन का दुनिया भर में बड़ा चल रहा है, लेकिन कनाडा में खास तौर पे उन्होंने, क्योंकि वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस से एकदम से वो KT पे कन्वर्ट हो गए हैं सारे, तो उसमें एक जो चीज रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आप एक ले एब्स्ट्रैक्ट भी सबमिट करें अपने ओरिजिनल एब्स्ट्रैक्ट के साथ, और आप एक ले समरी भी करें। तो एग्जीक्यूटिव समरी 2 हो जाती हैं, एक आपकी प्रोफेशनल्स के लिए होती है, एक आपकी ले ऑडियंस के लिए होती है। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट भी 2 तरह के होते हैं, एक आपका ले ऑडियंस के लिए जानना चाहिए और एक आपका जो है वो आपके स्पेशलिस्ट के लिए जानना चाहिए। तो ले एब्स्ट्रैक्ट में वही जो चीजें डॉक्टर परवीन ने बताई हैं, और सलमा ने भी कुछ उस पर जिक्र किया था कि आपने बहुत ज्यादा जो उसमें जार्गन्स यूज नहीं करने हैं, ये शो ऑफ करने की कोशिश नहीं करनी है कि आप जो है वो आपको बहुत ज्यादा पता है उस चीज के बारे में। आपने उसको सिंपल, जितना सिंपल रखेंगे उतना इफेक्टिव होगा वो। और तो एग्जीक्यूटिव समरी ज्यादा ब्रॉड है, एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा जो वो लिमिटेड है, कवर लेटर जो है वो टोटली जो है उसका पर्पस ही कुछ और है, उसका एब्स्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव समरी से मेरे ख्याल में कोई जो है वो इतना ज्यादा उसका कनेक्शन नहीं है। मेरे ख्याल में एक और क्वेश्चन है। हाँ जी, वही मैं देख रहा हूँ अभी। What should be covered in the background section of abstract? Many people feel difficult to grasp the content from huge content. तो शहजाद से पूछना। शहजाद, अगर आप आंसर करना चाहें। आप म्यूट हैं। Hello. जी शहजाद। Yeah. So background information जहाँ तक concern है abstract के लिए, as I mentioned कि background के अंदर basically you have to explain about the purpose of your research. इसके background में what is the connection, what are your experience, you can also give like that क्यों आप ये
रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं. एक्चुअली यू डू नॉट गिव the literature from the others work, because reader यहाँ पे is not interested to read about the others work, but वो ये interested होता है कि आपका जो research है वो क्या है और किस चीज से relevant है. So you should have to give a brief overview about what you are doing. Thank you. जी, कोई और स्पीकर अगर इसी क्वेश्चन में कुछ ऐड करना चाहे तो. डॉक्टर प्रवीण, सलमा, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं कि बैकग्राउंड में किस किस्म की इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट में हम कवर करें. बैकग्राउंड की जहां तक बात करते हैं तो इसमें ऐसे ही है कि जैसे आपने एक प्रीएम्बल है, जैसे आपने बताना है कि प्रॉब्लम कितनी इंपॉर्टेंट है किसी चीज को लेके. तो अगर आप बोले, अगर मैं बात करूं कि जी डोमेस्टिक अब्यूज पे अगर मैं लिख रही हूँ कुछ, तो मैं कहूंगी डोमेस्टिक अब्यूज इज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, इट अफेक्ट्स 33% of women all across the world. So something, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें कि उसको आगे जाने में मदद मिले और उसको पता चले कि आप टॉपिक कौन सी बात करें. क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं वो स्टडीज के या तो वो बहुत ज्यादा होते हैं या फिर वो इस तरीके से लिखे गए होते हैं कि हर किसी को समझ नहीं आ रही होती. तो और उसको थोड़ा टाइम लगता है. उसको हेल्प करने के लिए बैकग्राउंड आपको बाज़ औक़ात मिलती है जगह के जहां पे आप 2 सेंटेंसेस 3 सेंटेंस में कुछ लिखते हैं या बाज़ औक़ात नहीं भी होती. तो इट्स जस्ट दैट टू बिल्ड अप, वो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने के लिए टॉपिक को वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रह जाता है. यहाँ पे मैं पिकअप करूंगी जैसे सलमा ने भी कहा था और शहजाद ने भी मेरे ख्याल में कहा था कि मेक श्योर करो कि आप जो लैंग्वेज इस्तेमाल करें, टर्मिनोलॉजी हैज टू बी कंसिस्टेंट. तो अगर मैं फिर वही एग्जांपल लूं डोमेस्टिक अब्यूज की, तो डोमेस्टिक अब्यूज, अगर मैंने डोमेस्टिक अब्यूज यूज किया है टर्म, तो हर जगह पे डोमेस्टिक अब्यूज ही मैं यूज करूं. फिर मैं डोमेस्टिक अब्यूज और डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर उसको मैं इंटरचेंज ना करूं. दोनों बातें एक ही है, लेकिन वो आपकी रीडिंग में सही नहीं लगता और आपको इंफॉर्मेशन लोगों को कंफ्यूज कर सकती है. तो इसलिए बी कंसिस्टेंट विद द टर्मिनोलॉजी दैट यू आर यूजिंग इन द एब्स्ट्रैक्ट एज वेल. थैंक यू. मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अक्सर औकात आपकी रिसर्च कभी जो है ना वो फोकस होती है किसी नए कॉन्सेप्ट पे. तो अगर आप किसी ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो जो कि पहले किसी ने नहीं सुना हुआ, तो इट्स ऑलवेज गुड टू गिव अ ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन योर बैकग्राउंड बिफोर यू गो ऑन टू एक्सप्लेन योर एम. बिकॉज लाइक अदरवाइज आपके एब्स्ट्रैक्ट में अगर किसी को डेफिनेशन नहीं पता उस चीज की, टाइटल में भी वो चीज क्लियर नहीं है, तो कोई इंट्रोडक्शन तक जाके वेट नहीं करेगा कि आप उसको डिफाइन करें. तो आपको बेहतर होगा कि आप एक सेंटेंस में वो डेफिनेशन दें और साथ में फिर अपना रिसर्च गैप नोट करें और साथ ही अपना एम जो वो नेक्स्ट उसको डायरेक्ट कर दें. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था कि व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट. ताहिरा ने पूछा है कि व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट. तो शहजाद, अगर आप उस पर कुछ ऐड करना चाहें. जी, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया अपनी टॉक में, एब्स्ट्रैक्ट जो ना स्टार्ट्स विद लाइक, अगर आप सेपरेटली लिख रहे हैं इसको तो आपका टाइटल होता है, उसके बाद आपका जो इंट्रोडक्टरी बैकग्राउंड या इसको आप एम का नाम भी दे सकते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट. इसके अलावा उसके बाद आपका जो है वो मेथडोलॉजी आता है, मेथड सेक्शन आता है, and then you have to give or write results, and finally you need to give the conclusion and keywords. So ये उसके components हैं जो कि एक structured abstract को जो है split करते हैं. And again unstructured abstract में भी यही चीजें जो है वो आप कवर कर रहे होते हैं. इसमें एक चीज और ऐड कर दूं कि जो शहजाद ने जो उसके बारे में बताया, लेकिन एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जो आप जब कभी जर्नल आर्टिकल सबमिट करते हैं किसी जर्नल में, तो आपने टाइटल के अंदर ही मुल्क का और शहर का नाम लिखा हुआ होता है. ठीक है, जैसे आपने लिखा जी क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ नर्सेज इन कराची पाकिस्तान. ठीक, आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई बंदा मॉन्ट्रियल में रह रहा है कनाडा में और वो पढ़ना चाह रहा है क्रिटिकल थिंकिंग नर्सेस के बारे में या कोई किसी भी ऐसे टॉपिक के बारे में, उसको फर्क पड़ेगा कि कराची कहाँ पर है? यहाँ पे नीचे लिखे हुए यस और नो के वो हैं, आप इसको क्लिक करके भी बता सकते हैं. तो उसको बेसिकली नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन आपके उससे क्या फर्क पड़ेगा कि आपकी चॉइसेस ऑफ पीयर रिव्यूअर्स की या जिनके पास वो जा रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली लोगों के दिमाग में एक तरीके से
प्री कंसेप्शंस डाल रहे हैं कि जी आप उनको पहले से बता रहे हैं कराची पाकिस्तान से है, तो ये इट्स अ वेरी लोकल स्टडी, बहुत छोटी सी स्टडी है, एक ही जगह को कर रही है बाकी जगह। सो कोशिश करें कि शहरों के नाम और बहुत ज्यादा स्पेसिफिसिटी और मुल्कों के नाम अनलेस इट्स वेरी वेरी रेलिवेंट वो अपने टाइटल में या अपने एब्स्ट्रैक्ट में जिधर पॉसिबल वहां पे एक्सप्लेन उस तरह से ना करें जिधर हो सके। और टाइटल आपका इंफॉर्मेटिव रखें और 12 लफ्जों से ज्यादा 12 वर्ड से ज्यादा अपना टाइटल कभी भी बढ़ाएं नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा बढ़ जाता है तो इट डजंट रियली बिकम वेरी इफेक्टिव। और उसकी सर्चेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक चीज जो मैंने और सीखी थी प्रोफेसर वॉटसन से, वही और वैसे भी जो कहा जाता है कि जो ऑप्टिमाइज्ड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं कि आप जैसे मैंने कहा सेम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें। जैसे डोमेस्टिक अब्यूज की मैं बात कर रही हूँ तो मैं डोमेस्टिक अब्यूज को यूज करूँ, लेकिन कोशिश करें कि वो टर्म आपने एब्स्ट्रैक्ट में 2, 3, 4 दफा इस्तेमाल की हो मुख्तलिफ जगहों पे। उससे क्या होता है कि ऑप्टिमाइजेशन बढ़ जाती है आपके एब्स्ट्रैक्ट की। तो जब सर्च इंजन के थ्रू अगर किसी ने डोमेस्टिक अब्यूज डाला है और वो सर्च करना चाह रहे हैं उस चीज को, तो देयर वुड बी मोर देन 2-3 इंस्टेंसेस व्हेन दे आर एबल टू द सर्च इंजन आर एबल टू पिक इट अप, और वो आपका जो टॉपिक है और आपका एब्स्ट्रैक्ट है और आपकी जो स्टडी है दैट विल बी पिक्ड अप बाय देम। डज दैट मेक सेंस? So that's just a little trick to improve accessibility और उसकी जो searchability बढ़ाने के लिए। जी एहतिशाम। You're mute एहतिशाम। So the next question is like, अगर आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया और आप समझते हैं कि वो अप्रोप्रिएट है, तो क्या आपको बैकग्राउंड लिखने की जरूरत है या दोनों लिखने चाहिए एक एब्स्ट्रैक्ट के अंदर? तो शहजाद अगर आप बोलना चाहें इस पे। या जैसे मैंने पहले कहा कि एब्स्ट्रैक्ट जो है वो जर्नल्स के पास इतने ज़्यादा स्पेस नहीं है, यू डू हैव अ लिमिटेशन ऑफ वर्ड काउंट। सो वर्ड काउंट यूजुअली आपको 150 to 300 वर्ड्स में आप एब्स्ट्रैक्ट को जो है वो कंप्लीट करना होता है। सो 150 to 300 यूजुअली। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड जो है वो बहुत डिटेल्ड उस तरह से देना। यू कैन सिंपली गिव 1 to 3 sentences about this subsection. ठीक है, मैं उस पे सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा कि इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड यूजुअली जो है ना ज्यादातर जर्नल उनको सेम ही ट्रीट करते हैं। Although there is a big difference in introduction and background, लेकिन ज्यादातर जर्नल उसको सेम ही ट्रीट कर रहे होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट जर्नल में दी होती है, या तो वो आपसे बोलते हैं कि आप उनको एब्स्ट्रैक्ट में इंट्रोडक्शन लिख के दे दें, या फिर वो बोलते हैं कि आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे दें। कुछ जर्नल्स क्लियरली आपको ये भी कहते हैं कि हमें इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड नहीं चाहिए, डायरेक्टली एम पे जाएं और हमें उसकी अपनी फाइंडिंग्स बताएं। जैसे कि कुछ नर्सिंग जर्नल में आपको मे बी 90 वर्ड्स की लिमिट दी जाती है कि 90 वर्ड्स में एक पैराग्राफ में आप अपना पूरा मैन्युस्क्रिप्ट एक्सप्लेन कर दें और दैट्स प्रीटी मच इट। सो आपके पास इतनी स्पेस नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन भी एक्सप्लेन करें, बैकग्राउंड भी जाएं, फिर एम्स पे भी जाएं, इम्प्लीकेशंस भी मेंशन करें। तो वो यूजुअली आप जर्नल गाइडलाइंस फॉलो करते हैं उस सिलसिले में। अच्छा वसीम, ताहिरा ने हैंड रेज किया हुआ था। ताहिरा, डू यू वांट टू स्पीक? Do you want to raise your hand again? तो 2 ताहिरा हैं यहाँ पे, मुझे पता नहीं, आप मेरे ख्याल में मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। The one who I think it is. Do you want to speak, ताहिरा? ताहिरा का एक क्वेश्चन भी है यहाँ पे चैट बॉक्स में। जी ताहिरा। No, ma'am, I do not want to ask question. Actually, I have written in the chat box. So, ताहिरा का क्वेश्चन ये है कि अगर हम एक ही वर्ड को बार बार यूज करें मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर, तो क्या उससे प्लेजरिज्म के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं? क्वेश्चन अच्छा भी है, रेलेवेंट है, लेकिन चले डॉक्टर प्रवीण आप उस पर कुछ बताना चाहेंगी? You go ahead, एहतिशाम। अच्छा, इसमें ये है कि देखें प्लेजरिज्म आपका, आप वर्ड चॉइस से कुछ इश्यू नहीं होता है उसमें। प्लेजरिज्म आपका उस वक्त इंक्रीज होता है जब आप एक ही सोर्स से जो है वो स्ट्रिंग्स ऑफ वर्ड को अटैच कर रहे हैं और उसमें आपने इक्वली पैराफ्रेज नहीं किया है। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट में जो वर्ड आप यूज कर रहे होते हैं वो आपके मैन्युस्क्रिप्ट में से होते हैं, वो कहीं और से अगर आप उठाते भी हैं तो मतलब एक वर्ड के बेसिस पे आपको कोई भी एक्यूज नहीं करेगा कि आपने प्लेजराइज किया, क्योंकि वर्ड कॉमन वर्ड्स हैं, वो कोई भी यूज कर सकता है। और रिपीटेडली उसको यूज करने से एब्स्ट्रैक्ट में मेरा नहीं ख्याल प्लेजरिज्म के चांसेस इंक्रीज होते हैं। और सिमिलैरिटी इंडेक्स जो है वो कहीं भी एक वर्ड को अगर आप 2000 वर्ड के 2000
वर्ड्स के पैराग्राफ में अगर आप 5-6 दफा रिपीट कर भी देते हैं तो उससे सिमिलैरिटी इंडेक्स कहीं भी 1 या 2% भी नहीं इंक्रीज होगा। दूसरी चीज समझने की जरूरत ये है कि प्लेजरिज्म होता क्या है। प्लेजरिज्म जो कहा जाता है वो ये है कि आपने किसी दूसरे का काम या अपना ही काम किया हुआ बगैर उसको एक्नॉलेज किए हुए दोबारा से आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, एक जगह से आपने उठाया। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खासतौर पर जब ये बाहर के मुल्कों में हमारे पास आते हैं, तो हमें चूंकि इंग्लिश इज अवर थर्ड और फोर्थ लैंग्वेज, और न सिर्फ हमारी बल्कि बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारे लोगों की है, एंड देन व्हाट हैपेंस दैट पीपल जस्ट थिंक व्हेन दे रीड एन आर्टिकल समवेयर दे जस्ट थिंक यस एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, यही तो मैं, और इसलिए उनको वो उसको वहां से उठाया और डाल दिया, बिकॉज दे थिंक दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से एंड समवन हैज सेड इट राइटली, सो व्हाई डोंट यू जस्ट डू इट दैट वे। तो वो की जाती है। अब वो करना गलत है, बिकॉज इट्स लाइक स्टीलिंग समबडीज आइडिया विदाउट प्रॉपर्ली रेफरिंग इट, या अगर आपने उनको रेफर कर भी दिया और आपने उठा के इधर उधर से चीजें लगा दी, तो इट डजंट लुक लाइक एज इफ यू आर द वन हु हैज गिवन दिस आइडिया। तो और जहां पे अगर आप सिमिलैरिटी इंडेक्स, जैसे एहतशाम ने कहा, जहां आपने 2 सेंटेंस 4 सेंटेंस 6 सेंटेंस पूरा पैराग्राफ कॉपी किया हुआ, तो वो जगह आपको बता देगी एग्जैक्टली ले जाके उस आर्टिकल के बीच में जहां से आपने वो कॉपी किया होगा कि दिस thing is copied and pasted from this particular source, वो प्लेजरिज्म है। लेकिन अगर आप खुद ही लफ्ज इस्तेमाल करें, कॉन्टेक्स्ट फर्क है, एक ही चीज को बार बार करें, तो दैट इज नॉट प्लेजरिज्म। सो यूजिंग इंटरचेंजिंग योर वर्ड्स फ्रॉम हाउएवर टू यू नो व्हाट आर द अदर नेवरदलेस एंड ऑल दैट, उसका एक्सेसिव यूज करना या अननेसेसरी उसको चेंज करने से आपके प्लेजरिज्म पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो देयरफॉर ऑन द अदर हैंड इट इज इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट। तो एक ही टर्म को यूज करें एज यू गो आउट। ये इसी तरह से है कि जैसे अगर आप कपड़े सी रहे हैं या आप एक नेकलेस बना रहे हैं, मोती हैं आपके पास बहुत ज्यादा कलर के, तो आप बोलो कि अगर मैंने पिंक कलर यूज करा तो अब मैंने एक पिंक कलर का एक ही शेड यूज किया, तो ये प्लेजरिज्म है, ऐसा है? अगर आपने पिंक कलर के बहुत से दूसरे 2 शेड्स यूज करने शुरू कर दिए बिकॉज यू डोंट वांट टू रिपीट वन कलर दैट यू हैव यूज्ड, तो क्या होगा? नेकलेस कैसा बनेगा? खराब हो जाएगा ना, उसकी वो कोऑर्डिनेशन, वो सारी चीजें नहीं आएगी ना। तो आप क्या करेंगे कि आप वही एक कलर यूज इस्तेमाल करेंगे, उसको थ्रो आउट करेंगे ताकि उसका कुछ कॉम्बिनेशन अच्छा लगे, ठीक से लगे। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जो आप टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं उसी को इस्तेमाल करें। जिस कलर का आप कपड़ा पहन रहे हैं, तो शलवार कमीज दुपट्टे में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपका जो धागा जो यूज हुआ, बाकी सारी चीजें यूज हुई, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अगर आप बोले कि नहीं जी मैंने यहाँ कलर ये यूज किया, अब मैंने ऊपर दूसरा करना है, धागा मैंने तीसरे कलर का लेना है, तो वो तो फिर कुछ और ही बन जाएगा ना, वो तो फिर वो चीज तो नहीं बनेगी, उसकी खूबसूरती में वो वाली चीज नहीं आएगी जो आनी चाहिए। एहतशाम यू आर म्यूट। शहजाद कुछ कहना चाह रहे थे, मैं पहले शहजाद को अनम्यूट करता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेने, और मैं खुद ही उस वक्त म्यूट था। चलिए शहजाद, आपको खुद से अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को, मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया। थैंक यू एहतशाम। थैंक यू एहतशाम। प्लेजरिज्म के क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान में यहाँ पे टर्निटिन को यूज़ किया जाता है। टर्निटिन इज़ अ सॉफ्टवेयर जो कि प्लेजरिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। सो इसमें कंसिस्टेंटली वो उस वक्त आपके सेंटेंस को प्लेजराइज कंसिडर करता है अगर आपने कहीं से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किए हों 3 to 5 वर्ड्स। अगर आपने एक ही जैसे 3 to 5 वर्ड्स कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिए तो वो उसको फिर प्लेजरिज्म जो है वो प्लेजराइज कंसिडर करेगा। अदरवाइज जो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज हैं या इस तरह के जो एक्रोनिम्स हैं या एब्रिविएशंस हैं उनको जो है वो प्लेजराइज कंसिडर नहीं करता। यहाँ पे एक चीज़ मैं रिकमेंड भी कराऊंगा सारे लोगों को कि हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि किसी ऑथेंटिक पर्सन से अगर आप बिफोर सेंडिंग योर आर्टिकल टू एनी जर्नल कोई प्लेजरिज्म चेक कराना चाहते हैं तो उस पर्सन से चेक कराइए जो इसके लिए अप्रूव्ड है। अदरवाइज होता ये है कि अगर टर्निटिन यूज कर रहे हैं तो अगर किसी को पता नहीं है तो आपका जो आर्टिकल है या मैन्युस्क्रिप्ट है वो रेपोजिटरी में चला जाता है। वंस स्टूडेंट रेपोजिटरी में चला गया तो फिर उसके लिए आपको हायर एजुकेशन कमीशन से कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहां से जाके उसको जो है रिमूव कराना पड़ेगा। अदरवाइज वो उसको जो है वो 100% प्लेजराइज कंसिडर करेगा। ठीक है, मेरा ख्याल ये अगले वेबिनार के लिए एक अच्छा टॉपिक है कि अगर हम प्लेजरिज्म को डिस्कस करें और क्या प्लेजरिज्म है और क्या प्लेजरिज्म नहीं है।
तो फिलहाल इसको बड़ा अच्छा मतलब अभी तक थोड़ी बहुत डिस्कशन इस पे हो चुकी है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं जो कि था कि सिग्निफिकेंस और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है? What is the difference between significance and statement of problem? शहजाद आप बोलना चाहेंगे या सलमा? सिग्निफिकेंस ऑफ, सॉरी, सिग्निफिकेंस और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है? सिग्निफिकेंस और स्टेटमेंट ऑफ, जैसे कि वर्ड्स को अगर आप खुद से देखें कि सिग्निफिकेंस और स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इन योर होल मैन्युस्क्रिप्ट जब आप अपना इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड दे रहे हैं तो उसमें आपको जो प्रॉब्लम अंडर स्टडी है उसको सिग्निफिकेंट को आपने हाईलाइट करना है। सो व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन internationally and nationally as relevant for your problem under the study, ये है significance of the problem। और दूसरी बात जो है वो सॉरी क्या क्वेश्चन था मुझे? सिग्निफिकेंस और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, राइट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम सिंपल है कि आपने अपनी प्रॉब्लम को स्टेट करना है। सो यू हैव टू लर्न द skills how you have to state your problem under the study, because I usually used to use the funneling shape कि जब हम अपनी प्रॉब्लम को जो है वो स्टेट कर रहे हैं तो उसमें फनल करना पड़ता है। एंड यू कैन आल्सो यूज द फैक्टर डायग्राम्स अगर आप वो ले रहे हैं कि क्या आपकी प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड फैक्टर्स हैं, फिर आपने उसकी इंटरनेशनल रेलेवेंस देनी है, एंड देन you can make it like a funnel कि आप then national level पे आते हैं, then you state the purpose of your study। इसमें एक चीज ऐड कर दूं बहुत सिंपल तरीके से, और मैं गारंटी करती हूँ कि सारी जिंदगी नहीं भूलेगी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम में फर्क ये है कि अगर आप बोले मेरे पेट में दर्द है तो ये है आपकी प्रॉब्लम, ठीक है। और सिग्निफिकेंस उसकी मेरे पेट के दर्द की वजह से मुझे सारी रात नींद नहीं आ रही, ठीक है। उससे हो क्या रहा है? I know it's a very crude sort of example, but what it is, the problem you are stating the problem कि जी ये मसला है, ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम की वजह से ये हो रहा है। यहाँ पे यूजली सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम नहीं डिस्क्राइब की जाती, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी डिस्क्राइब की जाती है, ठीक है। तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं तो दिस इज द प्रॉब्लम एंड देन यू एक्सप्लेन दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी एड्रेस्ड और दिस इज हाउ इट इज एक्सप्लोर्ड इन दिस स्टडी एंड दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी कि हमें इससे पता चल जाएगा तो हम इस फाइंडिंग को इस तरह से यूज करेंगे कि जो प्रॉब्लम है हमारी वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो प्रॉब्लम थी मेरे पेट में दर्द है और कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा कि जो पेट के दर्द को देखिए, हमारे इलाके में डॉक्टर नहीं है, ठीक। आपने स्टडी डिजाइन की, मुझे ये देखना है कितने ऐसे डॉक्टर हैं इस एरिया के अंदर जो कि पेट के दर्द का इलाज करते हैं। सिग्निफिकेंस उसकी ये है कि जब आपने वो लिस्ट एक बना ली तो लोगों को जिनको पेट में दर्द हो रहा होगा वो ये देख सकेंगे कि आसपास कौन सा डॉक्टर है जिसके पास जाना है जो पेट के दर्द का इलाज करता है। समझ में बात आई? तो आई थिंक दैट्स द डिफरेंशिएशन। उस तरीके से आप सोचें उसको कि अगर आपकी उसकी अहमियत क्या है, उसको जहां आपको नहीं इंग्लिश की लफ्ज बाजों का अगर हमारी उस हिसाब से नहीं समझ में आते तो इट्स इंपॉर्टेंट टू जस्ट ट्रांसलेट इट इन योर हेड, अपने दिमाग में उसको करके देखें कि अच्छा इसका मतलब क्या है और इसके मतलब का यहाँ क्या मतलब है कि जहां पे हम बात करें, एंड दैट जस्ट सॉल्व्स द प्रॉब्लम हाफ ऑफ द टाइम। डज दैट हेल्प? थैंक यू। सो लास्ट क्वेश्चन जो अभी यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे चैट में, वो व्हाट इज अ रिसर्च क्वेश्चन? ओके, सो रिसर्च क्वेश्चन आपका, आपने जैसे अभी हमने बात की, हमने कहा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने बताई कि जी पेट में दर्द है। रिसर्च क्वेश्चन ये है कि वी डोंट नो, पेट में दर्द और हमें नहीं पता डॉक्टर कितने आसपास हैं जो पेट के दर्द का इलाज करते हैं। रिसर्च क्वेश्चन है, हम ये देखना चाह रहे हैं इस इलाके में कितने डॉक्टर हैं जो पेट के दर्द का इलाज करते हैं। समझ में बात आ गई? तो दैट्स योर रिसर्च क्वेश्चन, इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। सो क्वेश्चन की फॉर्म में है, सो इट्स नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज अ क्वेश्चन एंड इट इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन which allows you to which gives you direction, which tells you which direction you are going, कहाँ जा रहे हो, जो आपको पर्पस बताता है कि आप क्या करना चाह रहे हो, ऑब्जेक्ट बताता है किस चीज को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो और कैसे करना चाह रहे हो,
ठीक है. So the research question gives you the direction, gives you what the subject is and tells you where you are going, so that आपको पता हो कि आप इस जगह पे जा रहे हो और ये वाली चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो पेट के दर्द वाले डॉक्टर्स की एग्जांपल आपने इलाका बता दिया कि आपने कराची के अंदर देखना है कितने डॉक्टर्स हैं जो पेट के दर्द का इलाज करते हैं. आप कराची आपकी सेटिंग हो गई, डॉक्टर्स हो गए पेट के दर्द का इलाज करने वाले डॉक्टर्स आपका सब्जेक्ट या आपका पार्टिसिपेंट्स हो गए जिनको आप देख रहे हैं, और पेट का दर्द आपने कहा तो वो आपका इशू है. तो आप देखोगे क्वेश्चन में ही आपको बता देता है, फोकस है कि कराची के अंदर आप इतने लोगों को देख रहे हैं जो इस मर्ज का इलाज करते हैं. ठीक. सो इट जस्ट गिव्स यू. अगर आप बोले कितने डॉक्टर पेट का इलाज करते हैं, इज दैट फोकस्ड इनफ? इट्स वेरी ब्रॉड. कहां पर? कराची में, पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, दुबई में, किधर? ठीक है. तो research question is the statement of the it's the question which tells you what you're going to do, where you're going to do and how you're going to do. तो मैं सिर्फ उसमें ऐड करूंगा कि एब्स्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव समरी के हिसाब से आपको रिसर्च क्वेश्चन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव समरी में नहीं लिखना होता, उसमें आप सिर्फ पर्पस लिखते होते हैं, तो इसलिए वो कंफ्यूज नहीं होएगा उस कॉन्सेप्ट को लेके. I think यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि once sometimes आपने रिसर्च जब कंडक्ट कर ली होती है, आप एक रिसर्च क्वेश्चन के हिसाब से लेके जाते हैं, एंड देन व्हेन यू राइट योर एब्स्ट्रैक्ट, वो क्वेश्चन शायद थोड़ा सा ट्वीक हो जाता है टू मेक श्योर कि आपकी फाइंडिंग्स के साथ रिलेट कर रहा हो, या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सही तरह से एक्सप्लेन करे जो आपकी फाइंडिंग्स आप बता रहे हैं लोगों को. तो आई थिंक जब आप एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे होते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सेम टू सेम जो स्टेटमेंट आपने पहले लिखी है उसी को लिखें. यू मे हैव टू ट्वीक इट अ लिटिल बिट डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर फाइंडिंग्स आर एंड व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, जस्ट टू मेक श्योर कि लोगों के लिए बहुत ज्यादा चीजें साफ सुथरी और क्लियर कट हो और उनको कंफ्यूजन का शिकार ना करें. फहद का क्वेश्चन है, प्लीज डिफाइन स्कोप ऑफ अ स्टडी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अ स्टडी. I think we have answered this question in some ways. Scope of the study again, जैसे हमने बात की कि अगर हम रिसर्च क्वेश्चन को हमने बोला कि जी स्कोप के किस हद तक आप जा सकते हैं, किस हद तक आप नहीं जा सकते. ठीक है, कौन से एरिया में कहाँ पे आप, तो अगर हम उसी रिसर्च क्वेश्चन को दें कि कराची में कितने डॉक्टर्स हैं जो पेट के दर्द का इलाज करते हैं, तो आपने अपने आप को लिमिट, आपका स्कोप ऑफ द स्टडी कराची है, कराची के अंदर डॉक्टर्स जो कि पेट के दर्द का इलाज करते हैं, आप अब उस कराची के अंदर दिल के डॉक्टरों के पास आप नहीं जाएंगे, आप उनको नहीं देखेंगे, बिकॉज दैट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ योर स्टडी. ठीक है, आप हैदराबाद में नहीं देखेंगे, आप इस्लामाबाद में नहीं देखेंगे, आप पेशावर में नहीं देखेंगे, बिकॉज यू हैव सेड कि आप कराची में देखना चाह रहे थे. तो एनीथिंग विच इज आउटसाइड द डिफाइंड स्कोप ऑफ योर रिसर्च क्वेश्चन, जहां पे आपने कहा कि मुझे ये वाली चीज यहाँ देखनी है, उससे बाहर कोई भी अगर चीज है तो दैट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ योर स्टडी. डज दैट मेक सेंस? अभी और कोई क्वेश्चन हमें चैट बॉक्स में नजर नहीं आ रहा, तो अगर